Hello, welcome back. Good afternoon. Now I'm going to teach you terrorism, that is modern of arm. It is important disease. It comes under Shuklaga group. So listen to it carefully uh, and study it. So let's start terrorism. Terrorism. So the spelling of terrorism, you can see here P is silent. So the name is terrorism. You can see the picture here. Uh, Here sunlight is showing, ultraviolet rays. These are the ideological factors shown by the picture. So this terrorism, in this conjunctival fold is encroaching upon the cornea. The two layers, that is Bowman's man and Bowman's membrane and superficial stroma of cornea are overlapped by the conjunctiva within the interpalpebral aperture. I hope you remember what is interpalpebral aperture. So tertium is a triangular wing-shaped fold of conjunctiva which invades the Bowman's membrane and the superficial stroma of the cornea in the palpebral aperture. So palpebral aperture, I remind you, is the open space of the eye which is 28 to 30 mm horizontally and 8 to 10 mm vertically. So this is picture of tertium. It has two parts. First is which covers the corneal part, cornea. Second is conjunctival part, and third two has third part which covers the limbal area. So about its parts we will discuss in the lecture at a later stage. So this is also picture of tertium. Again tertium. Then types. It is of two types. Progressive tertium and regressive tertium. Their name suggests what kind of their constituency will be. So first is progressive tertium. It is thick, fleshy with rich vascularity. इसमें ये मोटा होता है, फ्लैशी होता है, इसमें वेस्कुलरिटी ज्यादा होती है और इसमें कुछ इन्फ्लेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्निया के इन फ्रंट पे, जिसको हेड ऑफ द टेरिजियम भी कहते हैं. इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द टेरिजियम प्रेजेंट होते हैं, जिसको कैप ऑफ द टेरिजियम भी कहते हैं. A few infiltrates are present in the cornea in front of the head of the terigium and known as cap of the terigium. तो जो infiltrates टेरिजियम के हेड के आगे प्रेजेंट होते हैं उसको कैप ऑफ द टेरिजियम भी कहा जाता है. सो प्रोग्रेसिव टेरिजियम, ये प्रोग्रेसिव टेरिजियम का डायग्राम है. ये थिक है, फ्लैशी है और इसमें वेस्कुलरिटी ज्यादा है और इसमें फ्यू इन्फिल्ट्रेट्स प्रेजेंट है, जिसको कैप ऑफ टेरिजियम कहते हैं. सेकंड जो है रिग्रेसिव टेरिजियम, इसको एट्रोपिक टेरिजियम भी कहते हैं. इट इज थिन एंड attenuated with poor vascularity. कैप इज एब्सेंट. तो ये एट्रोफिक होता है, पतला होता है,
ये डिल्यूटेड होता है, इसमें कंसंट्रेशन कम होती है और वेस्कुलरिटी कम होती है, और इसमें हेड के आगे, टेरिजियम के हेड के आगे कैप जो है एब्सेंट होती है। देन इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनकी बात करें तो it is commonly seen in people living in dry and dusty weather and due to exposure to ultraviolet rays। तो पहले डायग्राम में मैंने वहां दिखाया था कि सनलाइट दिख रही थी और साथ में पर्सन ने अपने आप को यूवी रेस से बचाने के लिए और ड्राई और डस्टी वेदर से बचाने के लिए गॉगल्स लगा रखे थे। Then coming to his pathology, it is elastide collagen degeneration, destruction of Bowman's membrane along with appearance of fibrovascular tissue. So it is a degenerative condition. इसमें कोने की Bowman's membrane जो है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू की अपीयरेंस होती है। Then its clinical features. इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। इसमें सबसे पहले सिम्टम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन, दो कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस में भी प्रेजेंट। बहुत टाइम या ज्यादातर ये जो है सिम्टमलेस कंडीशन होती है, परंतु व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी जो है कॉस्मेटिक उसको कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस लगती है कि उसकी आई में ये क्या हो गया है, ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया है। देन विजुअल डिस्टर्बेंस इफ इंक्रोजेस पुपिलर एरिया, अगर ये पुपिलर एरिया तक आ जाए तो विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। The limitation of ocular movements में produce diplopia, तो ऑकुलर मूवमेंट्स की लिमिटेशंस के कारण एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स की मूवमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो जिसके कारण व्यक्ति को डिप्लोपिया हो जाता है, जिसका मतलब उसको दो दिखने लग जाते हैं। Then coming to signs, pterygium has three parts: head, neck and body। तो हेड पार्ट वो होता है जो पार्ट प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। नेक पार्ट जो लिम्बल पार्ट जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे होता है। बॉडी पार्ट वो होता है जो लिम्बस और कैंथस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये स्क्लेरल पार्ट भी इसको कहते हैं। तो हेड, नेक एंड बॉडी के थ्री पार्ट्स होते हैं। Then coming to its treatment, तो एसेंशियली इसकी ट्रीटमेंट जो सर्जिकल ही है, सर्जिकल रिमूवल इसकी ट्रीटमेंट है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो बिनाइन ग्रोथ है, इसलिए ज्यादातर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, अनलेस ट्रीटमेंट की और उसमें भी सर्जरी की आवश्यकता तब होती है जब वो पीपल को कवर कर जाता है या विजन को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, विजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जब एक्यूट सिम्पटम्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें इरिटेटिंग सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो उसको हम आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप से मैनेज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स का एग्जांपल आपको पता है, ऑक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, अप्रमिलोज एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये सारे जो है वो जो है आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स में आते हैं।
However, no reliable medical treatment exists to reduce or even prevent टेरिशियम progression. परंतु यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसी अभी तक मेडिसिन नहीं बनी है जो टेरिशियम को या तो रिड्यूस कर सके या उसको खत्म कर सके या प्रिवेंट कर सके या उसको होने ही ना दे। तो फिर इसमें जो है सर्जरी करते हैं। The definite treatment is achieved only by surgical removal. Long-term follow-up is required as टेरिशियम may recur even after complete surgical correction. तो इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, तो वो तो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बता दिया है। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है रहती इसलिए है क्योंकि इसकी ये रिकरेंस हो जाती है कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन के पश्चात में। Today, a variety of options are available for the management of टेरिशियम, among which the most popular is conjunctival autografting. तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आजकल अप्लाई किया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, इसकी सर्जरी के लिए, परंतु इसकी रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एक न्यूअर मेथड कंजक्टिवल ऑटोग्राफ्टिंग को आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में परफॉर्म किया जाता है ताकि रिकरेंस जो या तो ना ही हो या अगर हो भी तो मिनिमम केसेस में। तो कंजक्टिवल ऑटोग्राफ्टिंग की बात करते हैं। इट इज अ सर्जिकल टेक्निक दैट इज इफेक्टिव एंड सेफ प्रोसीजर फॉर टेरिशियम रिमूवल। ये वो सर्जिकल टेक्निक है जो इफेक्टिव और एक सेफ प्रोसीजर है टेरिशियम को रिमूव करने के लिए। When the टेरिशियम is removed, the conjunctiva covering the sclera is also extracted. जब टेरिशियम को रिमूव करते हैं तो जो कंजक्टिवा जो कि स्क्लेरा को कवर करी उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो टेरिशियम के साथ साथ कंजक्टिवा को भी रिमूव कर देते हैं। तो इससे जो स्क्लेरा वो बेयर हो जाता है, यानी कि स्क्लेरा के ऊपर अब कंजक्टिवा नहीं रहता है। तो उस पे फिर क्या है, हमें ऑटोग्राफ्टिंग करनी होती है। वो बेयर स्क्लेरा पे जो है ऑटोग्राफ्टिंग की जाती है पेशेंट के अपर आईलिड से टिश्यू को लेकर। तो पेशेंट के अपर आईलिड से टिश्यू को लेकर ऑटोग्राफ्टिंग की जाती है उस बेयर स्क्लेरा पे। और उसको वहां पे दिस टिश्यू इज देन ट्रांसप्लांटेड टू द स्क्लेरा स्क्लेरा and is fixated using suture, tissue adhesives or glue adhesives. तो इस टिश्यू को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उस बेस स्क्लेरा पे, जिसके लिए सूचर्स को यूज करते हैं या टिश्यू एडहेसिव को या ग्लू एडहेसिव को यूज किया जाता है। सो थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर समझ आ गया होगा। तो जैसे अर्म की छेदन कर्म का पूरा विस्तृत वर्णन है, वैसे ही मॉडर्न में भी इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है, वो एक सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो जो इसमें बेनिफिट होता है वो सर्जरी से ही होता है, और उसमें भी मेन जो है वो ऑटोग्राफ्टिंग की जाती है बेस स्क्लेरा पे, कंजक्टिवल ऑटोग्राफ्टिंग की जाती है ताकि रिकरेंस मिनिमम हो। तो इस लेक्चर के थ्रू जो हमने पढ़ा वो टेरिशियम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट टेरिशियम की क्या है और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। और यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका अल्टरनेटिव या लास्ट ऑप्शन है, और फिर भी ये इसकी रिकरेंस हो जाती है, इसलिए जो है ऑटोग्राफ्टिंग की टेक्निक को अपनाया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे, स्टडी इट, it is an important topic which will usually come in the examination. So have a nice day. Thank you.